Hello everyone and welcome to another video in this React series. In this video, we are going to create a simple yet effective e-commerce website, which you can see on your screens. The focus will not be on styling, rather the focus will be on understanding use state, different uses of use effect, React routing, and React context. This is how our website will look like. Nothing fancy, but it gets the job done. As you can see, you can add products to cart, you can increase or decrease their quantity or even delete them from the cart. When you do, you can see the cart, the number beside cart changes. You can go to various pages, right? That is routing. You can go to the cart, you can go to the contact page. So this is what we are trying to create. Let's get this done. So I have with me a very fresh install of React. Nothing fancy. What does it look like? Nothing much for now. We are going to convert this into this. So the first thing, we need some additional libraries, some additional tools. Let's install them right away. npm I, we are going to be needing React Router DOM. Also, we will be needing some icons, so React icons. Also, we are going to fetch an API, so we're going to use Axios for that. So ये सब हम install कर लेते हैं. If any further tool is required, we'll install them as and when needed. So npm run dev again. So as you can see right now, it says import app from app. Let's go to your app. Basic boilerplate default जो code है वो सारा मैं हटा देता हूँ and we'll start from absolute scratch. There you go. Use state भी अभी हटा देते हैं. So the first thing that I'm going to do, I'm going to fetch products from a free API, Fake Store API. It's a well-known API. So let's try and do that. I want the products to be displayed as soon as my page loads. As soon as my page loads, that means I would be using use effect. Now remember, we have studied how React component works, their life cycle. So, and you should know why we are using use effect here. नहीं यूज करेंगे तो it will be an infinite loop, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं. So use effect it will be use effect, import भी हो गया ऊपर. Use effect takes two argument, the callback function and dependency array, which in this case will be empty because we want the code inside the function to run only once when the component is loaded first. When the component is loaded for the first time, we only want this particular code to run. Then that is why this is empty. Let me create a function. Why I'm creating a function? Because I'm going to write some asynchronous code in it. Let's import Axios as well. Axios.get. Oops, sorry, not get URI, simple get. So the URL would be this. I'll link the URI in the description, fakestoreapi.com/products. Let's use async and await. Okay, चाहिए. For the time being, let's console response and see if we are getting what we want or not. The function has to be called. So there we go. Right now, all we have done is, if we'll go back to our page, open console, हमें data console में दिखेगा. Let us see. And as you can see, we have the object. Fantastic. We are concerned with the data key. So let's see response.data. And as you can see, yes, we are getting the products. Fantastic. Let's get these product in a variable because we are going to use that variable here. And because that variable will be used outside the scope of this function, we need a global variable, hence a state. Let's create one. Let's call it products. What better name could it be? And a function set products. Use state, import bhi ho gaya hai. Let's have it null for the time being.
बाद में जावास्क्रिप्ट इसे टाइप कास्ट करके एरे बना देगी, बिकॉज रिस्पॉन्स डॉट डेटा इज एन एरे. If I pass this to set products, now response.data being an array, the null in products will be replaced by an array typecasting, internal typecasting अपने आप हो जाएगी. If I go into return and if I try to map these products, first we'll run this code only when the products has some data. So if products, that is if products is not null or any falsy value, तो ही हम ये कोड रन करेंगे, नहीं तो nothing. और चलिए, नहीं तो कुछ नहीं. अगर प्रोडक्ट्स में कुछ है तो हम कहेंगे उसे मैप कर दीजिए, प्रोडक्ट्स डॉट मैप. यू नो द होल डील. मैप कॉल बैक फंक्शन लेगा, लेट्स से प्रोडक्ट. सो वील रिटर्न व्हाट. नॉट क्लास, क्लास नेम, प्रोडक्ट. क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, दिक्कत क्या है, की. एज यू नो, की चाहिए. नाउ दिस पर्टिकुलर एपीआई हैज an id component, so I'm going to use that, product dot id. Okay, for the time being, let's say we'll take an image. The image will be product.in product.image. You can console log this set products and you can check what names this API has. Let's say, let's call the alt as product image. So we want the image and of course we want the title. Okay, but first let me put it in a div. That will be better. Product photo. There you go. So this and then content. Content it will be. Inside this content, let's have an H3, which will have product, oops, dot title. Let's have a paragraph for price. And we'll have an anchor tag for add to cart. Very basic, nothing fancy, and it is not going to look good as of now because we do not have any CSS. I just want to show you right off the bat कि start कहाँ से कर रहा है, right? Let's see. Yay! We have the photo, the title, and the price, the add to cart anchor tag. All is there, all 20 products. As I told you in the beginning, we will not be looking at the CSS as of now, right? The CSS, I will apply directly in it. You will also have the CSS in the GitHub repository. Let me apply the CSS and then we'll resume. So we have applied some basic CSS to our project. And yes, I have made one change. As you can see on line 18, I have added a parent div to our 20 products, just so that I can apply flex to it. Let me show you how it looks. Pretty basic, nothing fancy. I have just sized the images, put up some paddings and margins, and I have styled the anchor tag. Nothing fancy. Let me now create some pages and let us now discuss what routing is, how that works. So this will be my home page. Apart from this, I want my about page, my blogs, cart, contact page. Let me first create them, then we'll discuss some routing. So the structure right now is we just have this app. And yes, I have created a style.css, some basic styles. I'm using Roboto font. I have also imported the style CSS like this. In my source, now I'm going to create some folder. Let me call it pages. I'll create the other pages inside that. Let me create an about.jsx. Basic boilerplate code for now. So on blog.jsx. We will have
start JSX, and we will have contact.jsx. So we have created 4 pages, all in the folder of pages. Now, routing. This is something users will land on when they open our website. Sure. Now, what routing is? Routing is the changing of a page in a normal website. In React, routing is changing of the component, since React is a single page application. Page तो change नहीं होगा, component जो visible है उसका change होना when there is a change in the URL. So routing, changing of the component when there is a change in the URL is called routing. Right now we are at our home route, base route, which is localhost 5174. So when localhost 5174 is there in the URL, this should show up. Routing allows us, routing states that if my URL changes to, let's say, localhost 5174/blog, a different blog component should show up. On about, if the URL says /about, if the URL matches /about component should show up. Similarly, cart component should show up on /cart when the URL matches /cart. Contact component should show up when the URL matches /contact. Right now, whatever the URL is, you can see there is no change whatsoever. The same component is getting reloaded. No matter there is contact, there is cart, there is about, or anything. Routing in React is not enabled by default. You have to enable it. If you remember at the start, we installed a package React Router DOM that will help us set up routing. With the help of that package, we will create a component called browser router. Browser router will allow routing in the browser because, of course, our website will be running in the browser, and it will help us set clean URL like this /about /contact cart and so on. Now, there will be some changes in the flow. Right now, what was happening is the main JSX. In the main, I was rendering content from app JSX, app in which we were working so far. So right now, index HTML was calling main JSX. In main JSX, we were rendering content from app. Now I will add another file. What will happen of the flow? Flow कैसा होगा? Index HTML will call this file main JSX. Now will call a file, let's say home JSX. Home then will be calling our app. Previously क्या था? Index HTML, then main, then app. अब क्या होगा? Index HTML, main, home, then app. कुछ ऐसा रहेगा. पेजेस में नहीं, पेजेस के बाहर सोर्स में, यानी कि मैं फाइल बना रहा हूं होम JSX. वाई होम JSX? इस फाइल में हमारा राउटर डिफाइन होगा. लेट मी शो यू. ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम. ब्राउजर राउट क्या होता है? देखिए, वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी. A router for use in web browsers provides the cleanest URL, that is /cart, contact, about, blog. ऐसे ब्राउजर राउटर ब्राउजर में राउटिंग की सुविधा देता है विद द क्लीनेस्ट यूआरएल्स. इंपोर्ट भी हो गया है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम. ब्राउजर राउटर कंटेन्स राउट्स. इंपोर्ट नहीं हुआ, चलिए इसको एक बार इंपोर्ट भी करा लेते हैं. राउट्स, देयर यू गो. नाउ व्हाट डज राउट्स डू? राउट्स होल्ड ऑल द राउट ऑफ योर एप्लीकेशन. राउट्स क्या है? राउट का कलेक्शन है. जितने भी पेजेस या जितने भी कंपोनेंट आप अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं, वो सब, उन सब का कलेक्शन राउट्स के अंदर होगा. रिमेंबर, देयर कैन ओनली बी वन ब्राउजर राउटर इन एनी एप्लीकेशन. यू कैन नॉट हैव टू ब्राउजर राउटर्स.
So inside routes, let me create a route. Route takes two arguments or two attributes rather. This route tag will take two attributes, path and element. पाथ क्या स्पेसिफाई करता है कि यूआरएल किससे मैच होगा, यूआरएल में क्या आएगा। यहां मैं लिख दूं अगर स्लैश स्लैश, जैसा कि हम जानते हैं होम राउट बेस राउट, इन आर केस ऑन लोकल होस्ट विच विल बी लोकल होस्ट 5173 और 74, वट एवर योर पोर्ट इज। मेरे केस में 5174 लोकल होस्ट 5174 जब यूआरएल में आएगा, पाथ हमें ये बता रहा है उस समय पे किस एलिमेंट या किस कंपोनेंट को शो करना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां हमने कहा है हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को जब यूआरएल में लोकल होस्ट 5174 या मेरा होम राउट आए, उस समय पे ऐप कंपोनेंट से डेटा डिस्प्ले करिए, रेंडर ऐप कंपोनेंट एट दैट टाइम। अभी अगर आपको याद हो, ऐप तो बाय डिफॉल्ट ही लोड हो रहा है, दैट मीन्स इसका कोई असर नहीं आएगा। असर आएगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ ऐप हम होम को डिस्प्ले करवाएंगे। अब हमने क्या कहा, रेंडर करिए पहले होम से राउटर, लेट राउटर डिसाइड कि कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करना है बेस्ड ऑन दी यूआरएल। राउटिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, लोकल होस्ट 5174 अबाउट, चूंकि अबाउट का भी हमने कुछ नहीं बनाया, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, बट इफ आई गो टू लोकल होस्ट 5174, अब आप देखेंगे सेम कंटेंट दोबारा डिस्प्ले हो गया है, बट नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द राउटर, नाउ राउटर इज डिस्प्लेइंग दिस। क्या हुआ है, अब क्या एबिलिटी आ गई है मेरे पास, नाउ आई कैन राइट डिफरेंट यूआरएल्स एंड डिस्प्ले डिफरेंट कंपोनेंट्स। करा नहीं है फिलहाल, एक बार कर देते हैं। एज यू रिमेंबर वी हैव few pages, we have about, blog, cart and contact। तो मैंने कहा कि अगर यूआरएल में स्लैश अबाउट लोकल होस्ट 5174 स्लैश अबाउट अगर आएगा, उस केस में अबाउट, सॉरी, उस केस में अबाउट कंपोनेंट दिखाएंगे। ओके, हिंट नहीं कर रही रिएक्ट, कोई बात नहीं। उस केस में हम दिखाएंगे अबाउट कंपोनेंट। चलिए इसको इंपोर्ट हम मैनुअली कर लेते हैं। अबाउट फ्रॉम पेजेस में अबाउट डॉट जेएसएक्स, एक्सटेंशन इज ऑप्शनल। Similarly, we have blog, cart, and contact. Let me quickly write them. Blog and we. There you go. यूआरएल में स्लैश आने पे ऐप, स्लैश अबाउट पे अबाउट कंपोनेंट, स्लैश कार्ट पे कार्ट कंपोनेंट एंड स्लैश कॉन्टैक्ट अगर आया यूआरएल में, तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट से डेटा रेंडर होगा। नाउ लेट अस सी दी राउटिंग इन एक्शन, बिकॉज अभी है होम राउट, कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है आपका ऐप, लेकिन अगर यूआरएल में स्लैश अबाउट आता है, अबाउट कंपोनेंट, नथिंग फैंसी, बट यस द राउटिंग इज वर्किंग। कार्ट पे कार्ट, ब्लॉग पे ब्लॉग। ओ, ब्लॉग कंपोनेंट में हमने आई थिंक ब्लॉग लिखा नहीं, लेट मी सी। ओके, हमने ब्लॉग का राउट ही नहीं बनाया। ब्लॉग एंड ब्लॉग, सो नाउ यू कैन सी द ब्लॉग। बट यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली यूआरएल में जाके, एड्रेस बार में जाके यूआरएल मैनुअली चेंज करना इज कम्बरसम, यूजर ये नहीं करेगा। ऑफ कोर्स वी नीड अ हेडर, एंड लेट मी टेल यू दैट हेडर विल बी डिस्प्लेड ऑन ऑल पेजेस। मैं अगर होम पेज पे हूं तो भी हेडर दिखेगा, ब्लॉग पे हूं हेडर तो तब भी दिखेगा, अबाउट पे भी दिखेगा, ऑन ऑल पेजेस बेसिकली। क्यों बता रहा हूं मैं ये चीज, हेडर मैं बना रहा हूं हेडर कंपोनेंट, एंड उसको हम कॉमन कंपोनेंट बनाएंगे। सबसे पहले एक मैंने नया फोल्डर बनाया, नया फोल्डर इसलिए हेडर
पूरा पेज नहीं है, इट विल ओनली बी अ पार्ट ऑफ अ पेज, इट विल ओनली बी अ कंपोनेंट. सो लेट मी क्रिएट अनदर फोल्डर कंपोनेंट. उस कंपोनेंट फोल्डर में मैं एक फाइल बना दूंगा, हेडर JSX. हेडर विल सिंपली रिटर्न हेडर टैग. लेफ्ट साइड में हम एक H2 देते हैं विच विल से ई कॉमर्स, एंड राइट साइड में UL दे देंगे, होम. जो मैंने पेजेस बनाए थे उन्हीं के मैं एंकर टैग्स भी बना रहा हूँ, ब्लॉग, कार्ट एंड कॉन्टैक्ट. देखिए राउटिंग में मैंने क्या लिखा था. राउटिंग में हमने कहा था कि अगर यूआरएल में स्लैश आएगा तो ऐप चलेगा, यूआरएल में स्लैश अबाउट आएगा तो अबाउट चलेगा. यूआरएल में स्लैश अबाउट आएगा कैसे, वो मैं अब यहां बता रहा हूं कि जब यूजर इस एंकर टैग पे क्लिक करेगा तो यूआरएल में स्लैश अबाउट आएगा, इस पे क्लिक करेगा तो स्लैश आएगा. यानी यहाँ पे स्लैश ब्लॉग, स्लैश कार्ट एंड स्लैश कॉन्टैक्ट. ये क्या हुआ है? अच्छा फिलहाल लेकिन हेडर अभी शो नहीं हो रहा है. राउटिंग में हेडर को इंक्लूड करना होगा, एंड जैसा कि मैंने बताया था हेडर विल बी डिस्प्लेड ऑन ऐप, ऑन अबाउट, ऑन ब्लॉग, ऑन एवरी पेज. किसी पेज में मैनुअली, किसी पेज के अंदर लोकली जाके मैं हेडर को कॉल नहीं कराऊंगा. कर सकते हैं, रिटर्न करा दीजिए आप यहाँ पे से हेडर. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लोकली सिर्फ ऐप पे, होम पेज पे दिखेगा हेडर. ऐसा नहीं है. इसीलिए ब्राउजर राउटर में राउट्स से पहले, ध्यान रखिए, राउट्स से पहले हमने कॉल किया हेडर को. इंपोर्ट भी हो गया ऊपर. राउट से पहले कुछ लगाते हैं, राउट्स के बाद में कुछ लगाते हैं. दैट मीन्स दैट कंपोनेंट विल बी कॉल्ड, दैट कंपोनेंट विल बी कॉल्ड विद ऑल दी राउट्स. यूआरएल चाहे किसी से भी मैच हो, हेडर तो कॉल होगा ही होगा. हेडर यहाँ भी आ रहा है. अच्छा मजेदार बात, अगर मैं अबाउट पे कॉल क्लिक करता हूँ, हेडर देखें यहाँ भी आ रहा है, ब्लॉग पे, कार्ट पे, कॉन्टैक्ट पे, सब पे. चलिए बेसिक से CSS भी लगा देते हैं हेडर पे, साथ साथ ही लगाते चलते हैं हम CSS फॉर द हेडर. लेट्स से फर्स्ट डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, align items will be center, not align content, sorry. Align item center. We need some padding, some margin bottom. Let's say 1 rem. We need a background color. So I've already used a background color. I'm going to use the same. Some background color, some height as well. Let's say 60 px will be enough. And yes, from some padding from left and right. So zero point 0.5 from top and bottom, 3 rems padding from left and right. Now, what this will do, this will do this. Not looking great? It will in a moment. Anchor tag, some spacing, 0.25 rem, as well as some margin, same value, 0.25 rem. Let's say the color should be white. There you go. A basic header, which is working just fine. There you go. This, the routing part, I hope is clear. However, let me add on something to it. Let me add on something to the user experience. Right now, as I told you when I was starting with routing, React is a single page application. That means if I go from home to about or from one page to another, there should be no loader at the top. However, if I click on about, you will see the loader going, loading, going in rounds. It should not happen because it's a single page application. But why this is happening? Because we have used anchor tags. Now this is the default behavior of anchor tags. Anchor पे click करते हैं तो loader तो घूमता ही है. Just so कि वो loader भी ना आए ऊपर, we are using something called as a link from React Router DOM. Now link inspect element में आप देखेंगे तो
एंकर ही दिखेगा। अभी भी ये होम अबाउट ब्लॉग एंकर है, बाद में भी एंकर ही दिखेंगे, लिंक ओनली ट्रांजिशंस टू एंकर ओनली। लेकिन जब किसी लिंक पे क्लिक होता है, रीलोड नहीं होता है हमारा ब्राउजर। व्हाट आई एम सेइंग इज सिंपली दिस, instead of all the anchor tags, I am going to use a link tag, not link जिससे स्टाइल शीट लिंक होती है, that is different. So what I'm going to do is, and yes, एंकर में जो href एट्रीब्यूट होता है, लिंक में वो होता है टू। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ए href को लिंक टू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सॉरी, जो क्लोजिंग एंकर टैग है इसे हम चेंज कर रहे हैं क्लोजिंग लिंक टैग। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बेसिकली रिप्लेसिंग ऑल कंटेंट। हाँ, लिंक इंपोर्टेड नहीं है, लेट मी वेरी क्विकली डू दैट। लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम ऊपर आ गया। क्या हुआ ये देखिए ध्यान से, आप ऊपर लोडिंग पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैं होम पे हूं, मैं अबाउट पे जाता हूं, मैं ब्लॉग पे जाता हूं, वापस होम पे जाता हूं। अब आप देख रहे हैं देर इज नो पेज लो, देर इज नो लोडर इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टाइटल। सो दिस was a basic of routing. Next, we will study how we can use context. So now let's take care of context. Context is a global state management tool. With context, we can very easily transfer states between components. We can transfer state from parent to child to its child and so on. To easily understand context, to make the best out of context, let us first make components in our app. Right now, what is happening is what you are seeing on the screen is more or less coming from the single component app. यहां से लेके पूरा नीचे तक का ये सारा डेटा फिलहाल एक सिंगल कंपोनेंट ऐप से आ रहा है। इसको थोड़ा हम डिवाइड करते हैं, इसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में, छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। दैट इज द वे वी डू वर्क इन रिएक्ट यूजिंग वेरियस स्मॉलर कंपोनेंट्स। क्या कह रहे हैं हम? फिलहाल जो हमारा फ्लो था वो ये है, इंडेक्स एचटीएमएल से मेन, मेन से राउटर आ रहा है होम पे, होम हेडर के साथ कॉल कर रहा है ऐप को, श्योर, और ऐप से ही हम डेटा भी फैच कर रहे हैं और उसे मैप करा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का काम करूँ। ऐप तक का तो फ्लो सेम है, ऐप से ये जो पूरा प्रोडक्ट स्टेट वेरिएबल है, ये मैप वाली चीज हम यहाँ नहीं लगा रहे। इसको मैं एक बार निकाल के अलग जगह रख लेता हूं। यहाँ पे हम सिंपली एक कंपोनेंट को कॉल करेंगे प्रोडक्ट्स। ये स्टेट वेरिएबल उसे प्रॉप के तौर पे हम पास कर देंगे। प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स नाम से ही इसको पास कर दें। ऑफ कोर्स क्रिएट करना पड़ेगा ये कंपोनेंट। चले, हमारे पास कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर था, उसी के अंदर मैं बना देता हूँ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट जेएसएक्स। डोंट नीड द फर्स्ट लाइन। इस कंपोनेंट को ड्रॉप पास हो रहा है, उसी को यहीं स्प्रेड कर लेते हैं हम, प्रोडक्ट्स नाम से आ रहा है तो प्रोडक्ट्स। ध्यान रखिए ये जो प्रोडक्ट्स है, ये ब्लू वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वेरिएबल का नाम है। ये था आपका स्टेट वेरिएबल, उसको हम इसी नाम से भेज रहे हैं। हम चाहे तो नाम चेंज कर सकते थे, बट जो यहाँ ये वाला नाम था वही यहाँ पे आएगा। पहले यहाँ पे क्या था? मैप था, वो पूरा मैप अब यहाँ चलेगा। ये जो प्रोडक्ट्स आपके पास प्रॉप में आया है, इसको हम करते हैं मैप। मैप, लेट्स से प्रोडक्ट। यहां से भी अब मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूं। तो ऐप से प्रोडक्ट्स में आए थे, प्रोडक्ट्स क्या करेगा, 20 टाइम्स एक दूसरे कंपोनेंट प्रोडक्ट को कॉल करेगा। ऑफ कोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, लेट्स वेरी क्विकली डू दैट।
ये भी कंपोनेंट में ही डालेंगे हम, कंपोनेंट फोल्डर में, दैट इज। ये भी प्रॉप ले रहा है, ये प्रॉप को हम यहीं स्प्रेड करके हमने कह दिया प्रोडक्ट। पूरा का पूरा ये प्रोडक्ट इसे प्रॉप की तरह पास करें, तभी वहां यूज हो पाएगा प्रोडक्ट। चूंकि हम ये इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। ये इंपोर्ट हो गया। मैप कर रहे हैं, ये जो कंपोनेंट है 20 टाइम्स कॉल होगा। अच्छा, रिटर्न तो लगाया ही नहीं हमने, मैप वाला रिटर्न। जैसे ही मैंने रिटर्न लगाया, यहाँ पे की एरर आ गई। रिएक्ट को जब भी आप लूप से कोई एलिमेंट, कोई कंपोनेंट बनाते हैं, तो कोई कंपोनेंट कॉल करते हैं लूप के अंदर, उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर की देना होता है। 20 टाइम्स ये कंपोनेंट कॉल होगा, 20 टाइम्स से कुछ रिटर्न होगा। हर रिटर्न वैल्यू रिएक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करवानी है, उसी के लिए हम लगाते हैं की। अब की में क्या पास करें? नॉन रिपीटिंग वैल्यू होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। इस एपीआई में आपके पास आईडी आ रही है, लेट्स यूज दैट, एज इजी एज दैट। क्या हुआ है अभी तक मैं आपको समझा दूं। राउटर कॉल कर रहा था ऐप को। ऐप डेटा फेच कर रहा है पेज फर्स्ट टाइम लोड होने के बाद, और उसे एक कंपोनेंट प्रोडक्ट्स को भेज रहा है, जिसे हम इंपोर्ट कराना भूल गए थे, अभी करा दिया। पूरा का पूरा वो 20 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ प्रॉप प्रोडक्ट्स को पास कर रहा है। प्रोडक्ट्स फिर उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को मैप करा रहा है। जितनी बार उससे डेटा आ रहा है उसे रिटर्न कर रहे हैं। उस डेटा को, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को, इस कंपोनेंट को पास कर रहा है, जो कि है प्रोडक्ट। वो जो मैप पहले ऐप पे लगा हुआ था, उसको हम एज इट इज उठा लाएंगे, और ये प्रोडक्ट पे हम ऐसे लगा देंगे। की हमें नीड नहीं है। ये जो एरर आ रही है, ये ESLint की है, इसको हम वेरी सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। गाइस, क्या बताया मैंने? मैंने अभी सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा तोड़ा है, सिंप्लीफाई किया है, फर्दर पार्ट्स किए हैं। आउटपुट में आप देखेंगे कोई डिफरेंस। ओके, आया है, लेट्स सी। हमने कुछ एरर लगा दिए शायद, मे बी। यस। ओके, मैप प्रोडक्ट्स लाइन 4 पे एरर है, प्रोडक्ट्स पे लाइन 4 पे एरर है। प्रोडक्ट्स डॉट मैप नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा हमें, या तो ऐप से हमने प्रोडक्ट्स कॉल किया, उसे प्रोडक्ट्स नाम से हमने कुछ पास किया। चलिए, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को जरा कंसोल करा लेते हैं एक बार। नल। ऐसा क्या हुआ? ऐप में हमने कहा ये। ओके 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 ओके, प्रॉब्लम छोटी सी है। इफ यू रिमेम्बर, जो हमने कोड यहाँ से हटाया था, उसमें एक इफ एल्स हमने लगा रखा था, अगर प्रोडक्ट्स हो तो। देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बहुत बढ़िया, चलो तो समझा दूं। यहाँ पे एरर आ गई। क्या हो रहा है? ये प्रोडक्ट्स शुरुआत में है नल। एसिंक्रोनसली इस वेरिएबल में डेटा फिल होता है। एसिंक्रोनस यानी कि बाद में चलेगा। तो हमारा ब्राउजर पहले इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जब तक इसमें नल है ये एज नल ही पास हो रहा है। हमें सिर्फ ऐसा करना है, लाइन 20 तभी कॉल हो व्हेन दिस प्रोडक्ट हैज समथिंग। तो बेसिकली जो इफ एल्स पहले लगा रखा था वो लगाना था, हमने उसको हटा दिया था। मैंने कहा अगर प्रोडक्ट्स में कुछ है, इफ प्रोडक्ट्स हैज अ ट्रू दी वैल्यू, तो ही आप ये पूरी चीज उठा के यहाँ रखें, नहीं तो जस्ट डोंट डू एनीथिंग। तो अब इस प्रोडक्ट्स में वाकई कुछ जा रहा है, तभी स्टेट कंपोनेंट प्रोडक्ट्स कॉल हो रहा है। लेट अस सी, ब्राउजर में चलते हैं। टडा! कोई बात नहीं, विद अ स्मॉल सेटबैक ये हमारे पास डेटा आया। क्या हो रहा है? इंडेक्स HTML कॉल कर रहा है मेन को। मेन अभी भी कॉल कर रहा है राउटर वाली फाइल होम को। राउटर
लोकल होस्ट 5173 के लिए ऐप को कॉल कर रहा हूँ। लास्ट टाइम तक ऐप में ही सब कुछ था, अब ऐप डेटा फैच करके प्रोडक्ट्स नाम के कंपोनेंट को दे रहा है। प्रोडक्ट्स उस डेटा यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे मैप लगा के जितना भी उसमें से डेटा आ रहा है वो डेटा, वो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट नाम के कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, और ये है आपका प्रोडक्ट। ये पूरा एक प्रोडक्ट का जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है, यानी कि वो कंपोनेंट 20 टाइम्स कॉल हो रहा है। ऐसा करना नेसेसरी है। दिस इज द वे वी वर्क इन रिएक्ट। अभी अभी आपको कॉन्टेक्स्ट और अच्छे से समझ में आए। अच्छा, अब फंक्शनैलिटी की ओर बढ़ते हैं। नाउ आई वांट, व्हेन आई क्लिक दिस ऐड टू कार्ट बटन, दिस होल प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी एडेड टू द कार्ट। ये कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। कार्ट में ऐड होने का मतलब है एक स्टेट वेरिएबल होगा, उसमें ये ऑब्जेक्ट ऐड हो जाना चाहिए। देखिए, कॉन्टेक्स्ट की सबसे अच्छी रिक्वायरमेंट ही ऐसी जगहों पर आती है। तो जो प्रोडक्ट वाला पेज है उसमें है हमारा ए। अच्छा, कल हमने सीखा था कि एंकर की जगह हम लिंक लगा सकते हैं तो वो लोडिंग रुक जाएगी। तो लेट मी डू दैट। लिंक, लिंक में आता है टू, तो लिंक ऊपर इंपोर्ट भी हो गया है। ये लाइन टॉप पे रहेगी। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो रीलोडिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो लोडर आता था वो नहीं आएगा। हाँ, जो भी होगा इस बटन के क्लिक पर होगा। ऑन क्लिक, लेट्स कॉल अ फंक्शन हैंडल ऐड टू कार्ट। हैंडल ऐड टू कार्ट को ये पूरा ऑब्जेक्ट, अगर मैं, सॉरी डिफाइन नहीं है इसलिए एरर आ रही थी, 1 सेकेंड। हैंडल ऐड टू कार्ट को अगर मैं इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूं तो ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट मुझे उस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के तौर पे देना है। सो ऑन क्लिक, हैंडल ऐड टू कार्ट। अब चूंकि हैंडल ऐड टू कार्ट को आर्ग्यूमेंट देना है, यानी कि उस पर ऐसे लिखना है, पहले ऑन क्लिक पे एक अनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे। वो अनोनिमस फंक्शन मेरे लिए हैंडल ऐड टू कार्ट को कॉल करेगा, ताकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, इस कंपोनेंट को रीड जब किया जाएगा, इंटरप्रेट जब किया जाएगा, तभी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। हमें क्या कहना है, क्लिक पे फंक्शन कॉल करना है। जब आप पढ़ रहे हैं, जब ब्राउजर पढ़ रहा है तब नहीं। तो इसलिए पहले अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन तो जब तक कॉल नहीं होते चलते नहीं। ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो प्रॉप में आया था वो इसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास किया। फंक्शन डिफाइन करने पड़ते हैं, अभी तो डिफाइन नहीं है। एक बार मैंने यही इसी कंपोनेंट में हैंडल ऐड टू कार्ट बनाया, आर्ग्यूमेंट में प्रोडक्ट टू ऐड कह दिया इसको, जो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करना है। करना क्या है, एक स्टेट वेरिएबल में इसको ऐड करना है, तो स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ता है, कार्ट, एंड उसका फंक्शन सेट कार्ट यूज स्टेट। ब्लैंक एरे रख सकते हैं आप, नल रखना चाहे नल रख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, कार्ट में स्टेट वेरिएबल डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं होगा, तो सेट कार्ट को कॉल किया, एरे पास किया, यानी कि कार्ट में अब नल की जगह एरे जाएगा। उस एरे में हमें अपना प्रोडक्ट ऐड करवाना है, यानी कि अगर पहले से कार्ट में कुछ है उसके साथ ऐड कराना है। अगर पहले से कार्ट में कुछ है, सारे वो प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट टू ऐड। कंसोल करके मैं आपको दिखा देता हूं। दिस होल थिंग विल वर्क स्मूथली। कार्ट आपको कंसोल में, मतलब प्रोडक्ट उस कार्ट में ऐड होता हुआ दिखेगा। अगर हम ब्राउजर में जाएं, फिलहाल कार्ट नल है, बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूं। वी आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एरर। हैंडल ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ गया नल, ये टू ऐड सेट कार्ट, देयर इज एन एरर। एरर क्या है? हम्म ओके,
Okay, let me do this for a moment. Okay, so प्रॉब्लम ये आ रही थी बिकॉज इट वाज अ नल, नल में स्प्रेड नहीं वर्क कर रहा होगा। छोटी सी प्रॉब्लम थी, चलिए हमने उसे सॉल्व किया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो रहा है। इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे, ओके, रिप्लेस होके उसने ऐड किया। कायदे से दोनों प्रोडक्ट साथ में जाने चाहिए थे, कार्ट और उसके साथ हमने कहा ये प्रोडक्ट टू ऐड विल बी दी ऑब्जेक्ट। लेट्स सी। ओके, रिप्लेसमेंट हो रहा है। मेंस कॉटन जैकेट सिर्फ थर्ड वाला रह गया, कायदे से तीनों रहने चाहिए थे। हम्म। प्रॉब्लम क्या हो रही है वो मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो कार्ट में ये वाला प्रोडक्ट गया। देखिए, आप देख सकते हैं जब मैंने इस पे क्लिक किया तो वो सेकंड वाला प्रोडक्ट चला गया, फर्स्ट वाले को उसने हटा दिया। थर्ड वाले पे क्लिक किया तो वो सिर्फ थर्ड वाला प्रोडक्ट रह गया। ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। मैं अभी लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको अलग जगह लेके चल रहा हूँ। मैंने अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, Amazon मिंत्रा वगैरह जब भी हम कोई वेब ई कॉमर्स वेबसाइट खोलते हैं उसमें हमको होम पेज पे ही बॉटम राइट, टॉप राइट या बॉटम राइट कहीं भी कार्ट काउंट हमेशा दिखता रहता है। यानी कि मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ कार्ट के पड़ोस में मुझे नंबर दिखता रहे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स देयर आर इन माय कार्ट। बहुत सिंपल तरीका है, चूंकि कार्ट हमारे पास एक एरे है। मैं यहाँ पे हेडर में कार्ट के पड़ोस में उस एरे का काउंट दिखा देना चाहता हूँ। मैंने एम्फेसिस किया था हेडर में कार्ट का काउंट, हेडर में। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो कार्ट वेरिएबल है ये इस प्रोडक्ट नाम के कंपोनेंट में है जो कि यहाँ है। मैंने आपको कहा हेडर में जाके कार्ट के बगल में एक स्पैन टैग में मुझे वो कार्ट की लेंथ यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाना है। प्रॉब्लम इज कार्ट तो यहाँ डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक अलग कंपोनेंट में डिफाइंड थी। अब हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट। कार्ट को अगर हम प्रोडक्ट में बनाएंगे तो हेडर में यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर मैं कार्ट को यहाँ ले आता हूं हेडर में, तो वो प्रोडक्ट में यूज नहीं हो पाएगा। फिर प्रोडक्ट में जो हम हैंडल ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर आप कहें हैंडल ऐड टू कार्ट फंक्शन को भी हेडर में ले आओ, पर हैंडल ऐड टू कार्ट तो यूज यहाँ हो रहा है। यानी कि फंक्शन तो हैंडल ऐड टू कार्ट यही चाहिए, उसको कार्ट चाहिए, तो कायदे से प्रोडक्ट पे ही कार्ट होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट पे कार्ट बनाऊंगा तो हेडर पे कार्ट डॉट लेंथ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ हम फंस गए। देखिए सॉल्यूशन इसका ये है, कार्ट, सेट कार्ट, हैंडल ऐड टू कार्ट। फिलहाल आप देखेंगे ये लोकल फंक्शन है, ये भी लोकल स्टेट वेरिएबल है, यानी कि इसी कंपोनेंट का कार्ट, सेट कार्ट, हैंडल ऐड टू कार्ट ना प्रोडक्ट का लोकल रहेंगे ना हेडर का लोकल रहेंगे ये सारे। यही होता है कॉन्टेक्स्ट कि हम स्टेट को लिफ्ट करके पेरेंट में रख रहे हैं, इनका जो पेरेंट कंपोनेंट होगा उसमें रखेंगे, और वहां से उसको ग्लोबल बना के सबको जिन जिन कंपोनेंट को ये स्टेट या ये फंक्शन चाहिए उन्हें सप्लाई करेंगे। यही होता है कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट का पहले मैंने आपको यूज केस बताया, अब मैं कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज होगा वो बता दूं। हेडर और प्रोडक्ट्स, हेडर ये रहा, प्रोडक्ट सॉरी आता है ऐप के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट। यानी कि आपको एक ही वेरिएबल हेडर में भी देना है, ऐप के चाइल्ड में भी देना है। कायदे से ना उसे आप ऐप के चाइल्ड में बनाएंगे, ना ऐप में बनाएंगे, ना हेडर में बनाएंगे। आप उसे बनाएंगे यहाँ होम पे, जो कि दोनों का ही पेरेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से कट किया। हाँ, अब चूंकि कंसोल लॉग यहाँ चलेगा नहीं तो इसको भी हटा दिया। बिल्कुल, हैंडल एड टू कार्ट अब अनडिफाइंड हो गया है। वो दोनों कार्ट, सेट कार्ट और हैंडल एड टू कार्ट हमने प्रोडक्ट से उठाए, होम पे गए और यहां मैंने बनाए। यू स्टेट एक बार हम इंपोर्ट करा देते हैं।
ये हो गया कार्ट, सेट कार्ट, हैंडल एड टू कार्ट। अब हमने किसी कंपोनेंट को लोकल ना बना के उनके पेरेंट को दे दिए हैं। फिलहाल हाँ, ये पेरेंट में है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। बिल्कुल पेरेंट में तो आ गए। प्रॉप ड्रिलिंग हमने कुछ कुछ क्लासेस पहले देखा था। एक काम मैं ये कर सकता था, कार्ट एज अ प्रॉप हेडर को दे सकता हूँ। कार्ट, सेट कार्ट, हैंडल एड टू कार्ट ऐप को पास कर सकते हैं। ऐप से फिर वो आप प्रोडक्ट्स को पास कर सकते हैं तीनों फिर से। प्रोडक्ट से फिर वो आप प्रोडक्ट में जाके यूज कर सकते हैं। प्रॉप ड्रिलिंग, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट टू पेरेंट टू पेरेंट एंड टू चाइल्ड, बेटर है कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करें। हाँ, मैंने इनको पेरेंट पे तो ले आए, ये अभी भी ग्लोबल नहीं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन सम वेरिएबल, सम फंक्शंस that can be used by any number of components, their children, and even their children as well, without the need of passing them as prop, यानी without the need of prop drilling. Context सबसे पहले create करना पड़ता है, that is why we are using a function create context. Create context डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। फिलहाल डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में पता नहीं है, लेट्स कीप इट नल। आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ दें, इट्स बेटर टू गिव इट नल। पॉइंट नोट करिए, होम कंपोनेंट से बाहर बना रहा हूं मैं इसको, क्यों? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आपको एक कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है। वो कॉन्टेक्स्ट हमें चूंकि एक्सपोर्ट कराना है, चूंकि दूसरे कंपोनेंट्स में मैं उसे अभी यूज करूं, इसलिए मैं इसे होम से बाहर बना रहा हूं। एक वेरिएबल में हम इसे लिख रहे हैं, एक वेरिएबल में इसे स्टोर करा रहे हैं, यानी कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की जो रिटर्न वैल्यू है उसे हम एक वेरिएबल में डाल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट इट इज। क्यों? ताकि हम यहां से इसे एक्सपोर्ट कर सकें। ये हमने बनाया एक कॉन्टेक्स्ट। क्या है कॉन्टेक्स्ट? एक ग्लोबल स्टेट पूल है जहां पे आप ग्लोबल स्टेट्स फंक्शंस रखेंगे। रखेंगे फिलहाल खाली है, नल है। कॉन्टेक्स्ट है, यस। इसमें आप ग्लोबल स्टेट्स रख सकते हैं। रखते कैसे हैं? वैल्यू प्रोवाइड करके, इसे वैल्यू प्रोवाइड करके। देखिए डेफिनेशन में आपको बताऊं, अगर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लेट्स यू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट दैट कंपोनेंट्स कैन प्रोवाइड और रीड। होम कंपोनेंट आपका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, अदर कंपोनेंट्स हेडर ऐप वगैरह उसे यूज करेंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, होम में ब्राउजर राउटर के अंदर, लेकिन हेडर से पहले वो ई कॉम कॉन्टेक्स्ट हमने यहां लिखा डॉट प्रोवाइडर। ई कॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, प्रोवाइडर का भी कैपिटल ही आएगा। हेडर और सारी राउट्स को हमने इसके अंदर बांध दिया, इसके अंदर बाइंड कर दिया, यानी कि अब मैंने ये कहा है होम जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा उसे हेडर, ऐप, अबाउट, ब्लॉग, कार्ट, कॉन्टैक्ट एंड इनके चिल्ड्रन आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड तो किया है लेकिन खाली है, उसे वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू देन रिएक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, लॉजिक लिखने के लिए कर्ली ब्रेस। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट होता है, तो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या लिखा मैंने? कार्ट, सेट कार्ट, हैंडल एड टू कार्ट। ये होते हैं, अब ये तीनों बने हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। होम इन तीनों को, इन तीनों का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है टू हेडर, ऐप, अबाउट, ब्लॉग, कार्ट, कॉन्टैक्ट एंड देयर चिल्ड्रन। ये हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया यहां से और उसे प्रोवाइड किया इन सब कंपोनेंट्स को। यूसेज कैसे है? हेडर को मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कार्ट डॉट लेंथ चाहिए, पर प्रॉब्लम है कार्ट इज नॉट डिफाइंड। वेल, नॉट एनी मोर। अभी हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था, यहां मैं कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहा हूं। यूज कॉन्टेक्स्ट इज अ हुक फ्रॉम रिएक्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट एक्सेप्ट्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स द करंट वैल्यू। यूज कॉन्टेक्स्ट ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। डेफिनेशन में लिखा था एक्सेप्ट्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। वो जो ई कॉम कॉन्टेक्स्ट हमने वहां से एक्सपोर्ट कराया था वो यहाँ इंपोर्ट किया, इसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे दिया। यूज कॉन्टेक्स्ट आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें वो तीनों
जो हमने वेरिएबल्स डाले थे वो होंगे कार्ट, सेट कार्ट एंड हैंडल एड टू कार्ट। डीस्ट्रक्चरिंग की मदद से मैं मुझे चूंकि यहाँ पे सिर्फ कार्ट चाहिए, तो मैंने कहा उस ऑब्जेक्ट में से कार्ट की वैल्यू को एक कार्ट नाम के ही वेरिएबल में डालो। वही कार्ट डॉट लेंथ हम यहाँ यूज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट, चूंकि फिलहाल कार्ट की लेंथ होगी 0, मतलब कार्ट एम्प्टी होगी। अब आपको स्टेट कार्ट के बगल में दिख रहा है एक 0। ऐड टू कार्ट के क्लिक पे इसी 0 को मैं 1 कराऊंगा। कैसे? ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट में था, जिसके क्लिक पे हैंडल ऐड टू कार्ट चल रहा था, पर वो भी डिफाइंड नहीं है, अभी आ जाएगा। वही चीज हमने कहा कॉन्टेक्स्ट यूज करिए। कौन सा? ई कॉम कॉन्टेक्स्ट यूज करिए। हमें उसमें से चाहिए हैंडल ऐड टू कार्ट नाम का वेरिएबल। तो कॉन्टेक्स्ट में से हैंडल ऐड टू कार्ट उसी नाम के वेरिएबल में डाल दो। वही हैंडल ऐड टू कार्ट अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं। क्योंकि हेडर, प्रोडक्ट एक ही वेरिएबल कार्ट को मेंशन कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट से इसी कार्ट में एडिशन हो रहा है और हेडर इसी कार्ट की लेंथ देख रहा है। अब आप देखेंगे बाइंडिंग हो गई है। अगर मैं यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो वहां आप देख रहे हैं 1 हो जाता है। मैं अगर यहाँ इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं 2 हो जाता है। यानी कि थोड़ी देर वाली प्रॉब्लम जो एरे में रिप्लेसमेंट हो रहा था, वो तो अपने आप सॉल्व हो गई, क्योंकि अब जो एरे है, कार्ट एरे है, वो अलग हो गया है। कॉन्टेक्स्ट का सबसे बेहतर इस्तेमाल।